written to the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, seeking suo motu action against erring farmers and also direction for no adverse orders if lawyers fail to appear due to farmer protests as the streets of the national capital are clogged by the protest. Ashish Serai joins us for more on this story. Ashish, very strong letter by the Supreme Court Bar Association chief. Yeah, of course, that Supreme Court Bar Association Chief Adish C. Agarwal today written a letter to Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud. If you will go through the letter which has been written by Adish Agarwal, in his letter he said that I request your lordship to issue the instruction to all the concerned not to pass any advance order due to non-appearance in any matter listed before above mentioned court till there are absolute in the free movement of the public on Delhi road due to the farmer agitation. The second important player, which he has written in his letter, that he requested that CJI to take suo motu action against the erring farmer for forcefully trying to enter Delhi in a bid to create nuisance and disturb the daily life of citizens. So this is the letter which has been written by the Adish C. Agarwal. In morning, when the Supreme Court bench, which is headed by Chief Justice D.Y. Chandrachud, today set on for that routine, and at that time one lawyer mentioned before the CJI about this agitation, and CJI assured them that no adverse order will be passed in any matter if the advocate is not available, not appeared due to road blockage or farmer agitation. So this is the letter which has been written by the gist of the letter which has been written by the Adish C. Agarwal. So it remains to be seen that whether Supreme Court is going to take up suo motu or not. Yes, Ashish, remains to be seen whether the court will hear this or take cognizance suo motu, as you are saying, or not, because on earlier occasions the Supreme Court has spoken tough on protests which hinder traffic movement and public life. Yes, of course. Several times, not the first time, it's the several times, not even the Supreme Court, High Court also. There are the several observations comes from the court. But it remains to be seen that whether they are going to take suo motu in this case or not. The important thing is that Adish C. Agarwal has requested for that suo motu cognizance. The second important thing is that as you know that there is a matter which is already pending in the Punjab Haryana High Court, and Punjab Haryana High Court is going to take up a PIL today itself, which filed by one of the advocates in Punjab Haryana High Court seeking to clear the road, the blockage in the Sambhu border, Sindhu border, so Tikri border, Ghazipur border. So all the farmers who want to demonstrate, they should come to Delhi, and whatever their grievances, they have to say through their protest. So the right to protest is a fundamental right that particular petitioner has claimed in the petition which has been pending before the Punjab and Haryana High Court. It remains to be seen that after 2 p.m. when court is going to take up this matter for hearing, what order court is going to pass on that. All right, my colleagues meanwhile have filed exclusive reports on the situation at the borders. Let's quickly play them out. इस समय हम मौजूद हैं शंभू बैरियर पर। आज किसानों का दिल्ली कूच है और ऐसे में कल देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों के साथ चली बैठक के बाद वार्ता विफल रही। ये शंभू बैरियर के दृश्य हैं। ये दोनों पुल जो हैं वो पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन आज तस्वीर जो है वो तनावपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो इसी बैरियर पर जो है सबसे पहला टकराव जो है वो देखने को मिला था। आज रास्ते जो हैं उन्हें ब्लॉक करने का काम किया गया है। ये पुल जो जोड़ता है नदी के रास्ते से ना जाएं, तो यहाँ पर जेसीबी से इसे पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है ताकि नदी के रास्ते भी ट्रैक्टर्स जो हैं वो क्रॉस ना हो। वहीं जो रिजर्व फोर्सेस और पुलिस है उसकी तैनाती यहाँ पर की गई है। वहीं दूसरी ओर किसान संगठन जो है उनका पहुँचना बादस्तूर जारी है। नारेबाजी यहाँ पर जो है उसकी शुरू हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि राजपुरा फतेहगढ़ साहिब से ट्रैक्टर्स जो हैं वो निकले हुए हैं जो कि इस बैरियर पर यहाँ पर पहुँचेंगे। ना केवल ये बल्कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले तमाम वो बॉर्डर्स, सरहदी इलाके जितने भी हैं वहाँ पर जो है वो इसी तरह की डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं किसानों का ये कहना है कि एमएसपी की गारंटी जो है उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से पिछली बार भी जो कानून थे उन्हें वापस तो लेने का काम किया गया, लेकिन एमएसपी की गारंटी जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में किसानों की ओर से वार्ता
जो है वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ की गई, अपनी बात रखी गई, लेकिन वार्ता जो है वो विफल रही। यानी कि अब दिल्ली कूच को लेकर के किसानों की ओर से मोर्चा जो है वो खोल दिया गया है और कुछ ही देर के बाद इन बॉर्डर्स पर, यानी कि शंभू बैरियर की बात करें या बाकी बैरियर्स की या बॉर्डर्स की बात करें, तो वहाँ पर इसी तरह से किसान जो है वो जुटना शुरू हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में, यानी कि आज के दिन में, किस तरह की परिस्थिति जो है, किस तरह के परिदृश्य जो है वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, शंभू बैरियर, पंजाब। प्रदर्शन को लेकर पुलिस इस समय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस समय मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या स्थिति है। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। यहाँ पे ये सीमेंटेड बैरिकेड्स थे जिनके अंदर कंक्रीट भर के ऊपर तारबंदी कर दी गई है। उसके पीछे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ पर बसें भी लगा दी गई हैं। इतना ही नहीं, ये सर्विस रोड है और मैं अब आपको पुल के ऊपर दिखाता हूँ जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। मतलब पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिससे किसान दिल्ली में दाखिल ना हो सके। किसानों को रोकने के लिए पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है और किसी भी तरीके की स्थिति के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। फिलहाल इस सर्विस रोड को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, जिससे किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की तैनाती है, लेकिन तस्वीर उलट है हरियाणा में, क्योंकि ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो पहुंच चुका है शंभू बॉर्डर के बिल्कुल पास में और 100 मीटर की दूरी पर हरियाणा पुलिस और रिजर्व फोर्सेस की तैनाती वहां पर मौजूद है। लेकिन ट्रैक्टर्स जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और फर्स्ट लेयर ऑफ ट्रैक्टर्स जो है उनको खड़ा किया गया है यहाँ पर, और किसान जो है वो पंजाब के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ऐसे में किसान दिल्ली कूच को लेकर जो है, जिस तरह से कॉल दिया गया था, कल देर रात तक बातचीत हुई लेकिन वार्ता जो है विफल रही और उसके बाद अब जो है वो तैयारी किसानों की ओर से पूरी की गई है दिल्ली जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर्स जो है वो मॉडिफाई किए गए हैं ताकि जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं उनको खींचकर पीछे किया जा सके और रास्ता बनाया जा सके। और ऐसे में ये तस्वीर जो है वो पीछे तक आप ऐसे ही देख सकते हैं, लगातार फतेहगढ़ साहिब, राजपुरा, अलग अलग इलाकों से ट्रैक्टर्स जो है वो पहुंच रहे हैं और ट्रैक्टर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे, इन्हें खड़ा किया गया है और किसान जो है यहाँ पर अब इंतजार कर रहे हैं बाकी ट्रैक्टरों के पहुंचने का। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ युवा किसान भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या तैयारी आगे, इतनी रास्ते बंद है, कैसे निकालेंगे ट्रैक्टर के आगे? आपने बड़े बैरीकेड लाए हैं, पहले भी बहुत लाए थे, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। आगे मॉडिफिकेशन भी करा रखी है आपने ट्रैक्टर पर ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ भी गिरनगे, पर ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटांगे। आप देख सकते हैं टोचन, यानी कि जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं उनको टो कर पीछे खींचने की भी पूरी तैयारी की गई है ताकि रास्ता जो है बनाया जा सके। वहीं रास्ता जो है बंद किया गया है, नदी के रास्ते बंद किए गए, लेकिन किसान जो है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये संख्या जो है वो लगातार अब जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हालात जो है वो पल जो है वो शंभू बॉर्डर पर तब्दील होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पड़ाव दिल्ली का है। तो ऐसे में तमाम पंजाब के किसान जो है वो अलग अलग इलाकों से निकले हुए हैं। फतेहगढ़ साहिब से भी एक बड़ा काफिला ट्रैक्टर्स का निकला हुआ है और संख्या की बात करें, आप देख सकते हैं लुधियाना पंजाब रोड है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दूसरी और रोड के जाकर जरूर दिखाएं जल्दी कि किस तरह से ये ट्रैक्टर्स जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर पहुँचना और किसानों का पहुँचना जो है वो बादस्तूर जारी है। और अब इंतजार हो रहा है एकजुट होकर आगे बढ़ने का। ऐसे में पंजाब पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है, पंजाब पुलिस यहाँ पर तैनात है और बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर हरियाणा पुलिस की पहली बैरिकेडिंग, यानी कि वो रास्ता बंद करने का काम किया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब किसान आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं तो ऐसे में क्या पहले कोई बातचीत प्रशासनिक अमले की ओर से उनको बुलाया जाता है या फिर जब वो बढ़ते हैं तो ऐसे में किस तरह की तस्वीरें उस समय देखने को मिलेंगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, शंभू बॉर्डर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.